वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी सत संगत जीओ, संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मनीए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां अज जो विचार शुरू करांगे सूही राग दे विच महले पहले दी बाणी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार जो परमेश्वर निरंकार वाहिगुरू है, जिसकी इस संसार रचना है, जिहड़ा सच्चा नाम अपने तो पैदा करके नाम द्वारा इस सृष्टि नूं साजिया है। करता पुरख बनिया, सतपुरख तो करता पुरख। निरभउ है, उसदियां विशेषताइयां गुण ने। निरभउ है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, मूर्त उसकी काल दी नहीं है। अकाल मूरत है जो प्रकाश रूप है, अजूनी है, जूना तो रहत है, जन्म मरण तो रहत है, सैभं अपने आप तो पैदा होया है, ते सदा रहने वाला है, अविनाशी है। गुर प्रसाद, गुर दी कृपा सदका उसनूं जान सकते हाँ जिसकी यह रचना है। राग सूही महला पहला, चौप दे कर पहला। सूही राग दे विच महले पहले दा शब्द है, चौप दे चार पदियां दा शब्द है, कर पहला है। रहो पंक्तियां ने। जपो ता एको नामा, जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। सतगुरु समझाउंदे ने कि जे जपना है तो एक मैं नाम ही जपदा हाँ, क्योंकि ये ज्ञान हो गया है कि होर सब कुछ ही निफल है। अवर निराफल कामा, सब कुछ करना ही व्यर्थ है। कलयुग दे विच सिर्फ नाम दी सिर्फ सलाह, नाम नूं जपना यही एक काम है। होर जिहड़े कर्म धर्म पखंड ये पिछले युगां दे ने। तीर्थां ते जाना, वर्त रखने, ये पिछले युगां दा धर्म है। पुण्यदान करने, कलयुग दे विच सिर्फ नाम जप तप करना हो सारा ये पिछले युगां दा धर्म है। इहो पंक्तियां ने कि जपो ता एको नामा, आवर निराफल कामा। भी होर सारे काम निराफल ने। हुण ये करना किवें है नाम दा, कि नाम है कि ये सानू समझाउंदे ने। भांडा धोए बैस धूप देवूं, तो दुधे को जावूं। जिवें उदाहरण देती है संसार दी कि भांडा धोंदा है जीव दुध दे वास्ते, देखदा है कि सुका लैंदा है धुप दे विच, ताकि कोई उस शुद्ध हो जावे, फिर दुध लैके आउंदा है। क्योंकि जे दुध किसी उस भांडे च जिहड़ा धोता ना होया, जिसनूं माड़ा मोटा भी खट्टा लग्या रह गया, दुध फट जांदा है। इस करके भांडा धो के जांदा। इदां ही अपने मन नूं निर्मल करना है। अपने मन दे विचों जिहड़े भरम ने वो कट देने, जी अपनी मत द्वारा
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਜੰਮੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਜਮਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੰਮੇਗਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ, ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ। 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿੜਕਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ। ਮਦਾਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2 ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਰੱਸੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸਿਰਾ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਰਿੜਕਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਥਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਚ ਨਾ, ਨੇਤਰ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਣ। ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਇਹਦਾ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਥਨਾ ਹੈ, ਬਿਲੋਬਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਨ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੈ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਮਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ 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 ਜਾਵੇ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਹੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਦਾ ਅਚਰਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੱਚੇ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਜੀਵ ਵੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਪਰਮ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਆਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
सतगुर की किरपा सदका एक परमेश्वर का ज्ञान, उस प्रभु का मिलाप, उसकी पहचान, उसके दर्शन। रहो पंक्तियां ने, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चाकर साचे केरे। कि उस परमेश्वर दे चाकर बन जाओ, सच्चे दे। चाकर कदों है? जदों मन उच समाउंदा है। चाकर तां तेरा सोई होवे जो सहजे रहा समाए। जिहड़ी पहली आपां विचार के आए हाँ, उस तरीके दे नाल मन उस समा जांदा है, उसनूं रमदा है। फिर ऐसा चाकर हो के फिर उस प्रभु का ज्ञान अगे दसो। कहते ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, फिर ऐसा ज्ञान अगे जीवन नूं दसो। ऐसे ज्ञान सिर्फ सलाह करो चाकर बन के। चाकर हुंदा है चौ दे विच, कोई इच्छा रख के नहीं, चौ दे विच भगती चाकर बनना है। ये रहो पंक्तियां ने, अंतर वसा बाहर ना जाए। मन साडा कित्थे वसे? अंदर वस जाता है। जिसका प्यार पै गया, जिसनों दूजा दिसदा ही नहीं उहदे वर्गा, अंदर की है? दसवां द्वार। शरीर दे विच नहीं, इधर नूं बाहर चले जाते, इस पासे नूं आपां ध्यान लाउंदे अंदर चलते हैं। अंदर प्रकाश दे विच मन वसदा है, बाहर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता बाहर? क्योंकि बाहर बेखा है, अंदर अमृत है। अमृत छोड़ काहे बेखाए। कहते फिर जिसनों पता चल गया कि इधर बेखा है, त्रै गुण माया है, त्रै गुण माया नूं बेख कहा है, ते अंदर अमृत है। फिर अमृत छड्ड के बेख क्यों खाएगा? जिसनों ज्ञान हो गया, चाकर बन गया उस परमेश्वर का, फिर अंदर वसता है, अंतर्गत ध्यान द्वारा रहता है। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै। वो कहते ज्ञान ध्यान द्वारा हर कोई गल्लां करता है, क्योंकि ध्यान तो है ही। ध्यान की होंदा है? देखना। तो ज्ञान दी गल्लां भी बड़ियां करते हैं सारे ही, पर ध्यान निरंकार दे विच किवें लाउणा है। ध्यान तो ध्यान है, संसार नूं देखदे ये भी ध्यान है, लेकिन निरंकार नूं किवें देखना है, इसका ज्ञान लेना है। नहीं तो सारा संसार ही ज्ञान ध्यान दीयां गल्लां करता है, पर सारा ही बंधन दे विच बंधिया है, माया वास्ते गल्लां करता है, माया दे विच ध्यान जुड़िया रहिंदा है, माया दे विच बंधन ने, ते इदां मन पवदा रहिंदा है। मतलब कहते बंधन बांधिया सब जग पवै, सेवा करे सो चाकर होए। एक पासे बंधन दे विच जीव करता है माया दे वास्ते, एक चौ दे विच करता है बिना किसी आशा रखे तो। सेवा करे सो चाकर होए। कहते वही उहदा चाकर है जिहड़ा उहदी सेवा करता, किसी बंधन च नहीं, चौ दे विच। जल थल महियल रव्या सोए। उसनों फिर परमेश्वर हर थां प्रगट होंदा है। जल विच भी उसनों देखता है, थल विच भी उसनों देखता है, महियल विच भी, धरती तो लैके आसमान तक हर थां वही रव्या होया है। पर किन्हां नूं प्रगट हुंदा? जिहड़े चाकर ने। चाकर किहो जिहे हुंदे ने? जिन्हां दे मुख उजल हो जाते ने। प्रभु के चाकर प्रभु के चाकर से भले, नानक तिन मुख उजले। वो भले चाकर ने जिन्हां दे मुख उजल होंदे ने। इस करके उन्हां नूं फिर मालक हर थां जल विच, थल विच, मैया हर थां प्रगट है। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हुण जिस जीव नूं जिहड़ा खुद चंगा हो गया, ਉਹਨੂੰ फिर सारे चंगे लगते हैं।
जब सारे चंगे हाँ तो फिर किसी नूं बुरा नहीं देखेगा। फिर बुरा किहनूं देखेगा जीव कि मेरे नालों सारे चंगे ने, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। क्योंकि जे बुरे दूजे दिसणगे फिर अपने आप चंगा दिसदा है। जदों सानू सारे चंगे दिसदे फिर जीव कहता है कि मैं ही सब तो बुरा हाँ। क्योंकि परमेश्वर नूं कौन पाउंदा है? जिहड़ा चंगा हो के भी अपने आप नूं जनावे ना, चंगा हो के भी अपने आप नूं कहे भी मैं चंगा नहीं, मैं तो बुरा हाँ, हे प्रभु मैं तो तेरे लायक नहीं हाँ। फिर प्रभु नूं पाउंदा। जिहड़ा अपने आप नूं ही सलाउंदा है वो प्रभु नूं नहीं पाउंदा। जिवें बाबा कबीर जी समझाउंदे हन, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय। भी मैनू छड्ड के मैं ही सब तो बुरा हाँ, मैं तो बिना सारे ही चंगे ने भले ने। जिन ऐसा कर पूजया मीत हमारा सोए। जिहड़ा इदां बुझ लैंदा है कि मैं तो सब चंगे मैं ही बुरा हाँ, वही साडा मित्र है। हुण इत्थे संसार च की है कि हर कोई कहता मैं ही चंगा बाकी सब बुरे हैं, पर परमेश्वर नूं पाउंदा जिहड़ा कहता हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। ऐसे जीवां नूं फिर प्रभु तार लैंदा है। जिहड़ा कहता मेरे कोल ज्ञान नहीं, मेरे कोल गुण नहीं, मैं तैरना नहीं जानदा, जिहड़ा कहता मैं तैरना जानदा हाँ वो डुबेगा। जिहड़ा कहता मैं नहीं तैरना जानदा, तू प्रभु तार ला बीठ ला, भी मैनू तू तार ला, मैं तरना नहीं जानदा, फिर उसनू तार लैंदा है। अगला शब्द फिर सूही राग दे विच, सूही महला पहला, कर छेवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर की कृपा सदका, क्योंकि अपना ज्ञान नहीं है, सतगुर साडे सारियां च वसदा है, वो दया करता है, फिर ही सानू ये सारी सोझी आती है। रहो पंक्तियां ने, सज्जन सेई नाल मैं, चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। कहते सज्जन तो मेरा वही है असली, जिहड़ा इत्थे भी है ते चलदियां नाल ही चलदा है। अगे जिथे कोई लेखा मंगेगा नाल ही खड़ा होएगा। ऐसा सज्जन दो तरह दे दस्या है संत। ढूंढ सज्जन संत पक्या, कचड़िया स्यों तोड़, ओ जिउंदे विछड़े ओ मोया ना जाई छोड़। हुण ऐसा सज्जन किहड़ा है साडा, वो है गुर, ज्ञान, गुर दा ज्ञान। क्योंकि गुर कौन है? गोबिंद। गोबिंद सज्जन है, गुर सज्जन है, ज्ञान सज्जन है। किहड़ा ज्ञान? पूरा जिहड़ा ज्ञान है, पूरा गुरु जिन्हों आपां कहंदे, जिन्हें पूरे प्रभु नूं पा लिया उस तो दिता पूरा गुर है, उस गुर नूं सज्जन बनाउणा है। क्योंकि ज्ञान नाल चलदा है जीव दे, जिथे जाएगा उत्थे ही ते ज्ञान ही सानू चलाएगा, गुर ही सानू चलाएगा। इस करके जिहड़ा ज्ञान गुर है वही सज्जन है, वो प्रभु दा दिता बचन है। रहो पंक्तियां ने, उज्जल कहा चिलकना, कोटम कालड़ी मस, तोत्या झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। हुण समझाउंदे ने कि मन की हालत किहो जी है। कालड़ी मस जिवें स्याही हुंदी, काली कालस हुंदी है,
इदां दा मन की हालत हो चुकी है। फिर किवें चिलकना होएगा, किवें यह उज्जल होएगा। बंदा धोएगा तन नूं, क्योंकि आम जीव किनूं धोंदा? तन नूं। मन की मैल तो उतरती नहीं। ते मन साडा किहो जिहा हो चुका है? काला स्या। जन्म जन्म दी मल लगी है इस मन को, जन्म जन्म की मल लगी, काला हुआ स्या हो। खंडली धोती उजली ना हो गई, जे सो तोबा पाहो। 100 बारी भी तोबा फिर भी उज्जल नहीं होनी। इस करके कहते किवें उज्जल होए। इन्नी कालड़ी मस लगी है इसनूं, किवें उज्जल होएगा, किवें चिलकना होएगा, चमक आएगी। 100 बारी भी धो लवां फिर भी झूठे दा झूठे रहेगा। इसनूं सुच्चा नहीं होना, इसने साफ नहीं होना, इसकी झूठ नहीं उतरनी। क्यों? कोठे मंडप माड़ियां, क्योंकि इसने मन का ध्यान ही किधर है? संसारी वस्तां दे नाल। संसारी वस्तां चों मन नूं होर मैल ही लगेगी, हौमे दी मैल लगेगी, होर काला स्या होएगा। कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां, कहंदे उन्हां नूं ही चित दे विच वसाया होया है। टट्ठियां कमनावनी विचों सखणियां। पर यह जो भी है दिसदा है, जिस दिन ये शरीर ने टहना है कुछ भी कम नहीं आना, क्योंकि ये नाल नहीं जानिया। असी उसनूं बनाउणा अपना सज्जन जिहड़ा नाल चलेगा। ये दिसदियां कहंदे सखणियां, किस काम नहीं आउणियां, विचों सखणियां ने। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मांझ वसन। इदां ही शरीर ने जिन्हां दे कई जीव तन नूं शिंगार लैंदे ने, मन नूं धोंदे नहीं, कपड़े बग्गे पा लैंदे, चिट्टे रंग दे कपड़े पा लैंदे ने, तीर्थां ते जाके वस जांदे ने, बारी भेख कर लैंदे ने निर्मल होण दा, संत साधु होण दा। पर ध्यान कित्थे हुंदा है? माया दे विच, कोठे मंडप माड़ियां दे विच, धन दौलत दे विच। कुट कुट जियां खावणे बग्गे ना कहियन। कहंदे जीवां नूं खांदे ने जिवें बग्गा जीवां नूं खा लैंदा है, छोटे छोटे जीवां नूं, डड्डियां मच्छियां। ऐदां ही इत्थे जीव ने जिहड़े बारी पे करके भोले भाले लोकां नूं लुटदे हन। इत्थे जिहड़ा खाना की है उन्हां दी कमाई खांदे ने, उन्हां नूं लुटदे ने। तो जिहड़े ऐसे जीव ने वो एक दिखावे दे बगे ने, पर अंदरों मैले ने। वो परमेश्वर दे बारे नहीं कह सकते, उसदा ज्ञान नहीं दे सकते, उसदे बारे कुछ कह नहीं सकते। इस करके वो सज्जन नहीं हो सकते, वो कच्चे ने। सिमल रुख शरीर में मैजन देख भुलन। शरीर कहते अपने शरीर नूं बड़ा ताकतवर, अपने आप नूं बड़े उच्चे समझते हैं, जिवें सिमल दा रुख हुंदा है, जिन्हों आप आशा दी वार च पढ़ते हाँ। सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुछो, ओए जे आवे आस कर जाए निरासे, कित फल फिक्के फुल वक वके कम ना आवे पत। मिठत नी भी नानका गुण चंगियाइयां तत। इदां बड़े बड़े संत साधु कहाउंदे हन, बड़ा उन्हां नूं अपने गुणां दा हंकार हुंदा है, ते अपने हस्ती नूं सच नूं नहीं जानते, पर भुल जाते ने। हंकार करते ने, तन का हंकार करते ने, तन दौलत का हंकार करते ने, महलवाड़ियां का हंकार करते ने। से फल कम न आवनी ते गुण मैं धन हन। जिहड़े कहते मेरे को बहुत सारे गुण ने, बहुत सारा मेरे को धन दौलत है, ये अगे नहीं काम आना कुछ भी। ये तां
साडे तन दे वास्ते मन दे वास्ते एक घाटे दा बन जा है, क्योंकि तो इत्थे ही रह जाना है। ये तो समा ते होर हंकार दी मैल लगती है। तन जो बनदा च हंकार करता है, जो जाने मैं जोवन बंत सो विष्टा का जंत। आपस को कर्मबंत कहावे, जन्म रहे बहु जन जोन परमावे। तन भूमिका जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। इस करके समझाते ने, कहते ऐसे जीव ने जेड़े ये अगे फल नहीं देंदा कुछ भी, ये तो समा ते हानि है। अंधले पार उठाया डूगर बाट बहुत। कहता ऐसा जीव ने अंधले ने इन्ना पार उठाया है। बारी भेखदा ते लोकां नूं लुटदा है, भेख दिखा के बड़ियां कोठियां महल माड़ियां बना लैंदा है। ते तन दा मान करदा है, गुणां दा मान करदा है। ऐसा जीव कहते इनू पता नहीं कि मैं तां भार उठा रहा हाँ बहुत। ये भार है उसदे उत्ते, पापां दियां पंडां ने, पापां दा भार है। ते अगे जिहड़े बाट लंघना है वो बड़ी डूंगी है। अंधले पार उठाया डूगर बाट बहुत। कहते रास्ता भी बड़ा डूंगा है जिथे लेके लंघना है। अखी लोड़ी नाल हाँ हों चढ़ लंघा कित। हुण जिहड़ा ज्ञान लैना सी वो जीव वो लोड़दा नहीं कि वो सानू अखां मिल जाण, वो ज्ञान मिल जावे कि साडा मन साडा ध्यान इस माया तो निकल के पार हो जावे भवसागर नूं। एक पंडा साडियां उतर जाण, क्योंकि सारा कदों जदों गुर दे ज्ञान द्वारा मन निर्मल हो जाता है, पाप उतर जाते हैं तो असीं पार हो सकते हैं। पर वो जीव ज्ञान लैना नहीं चाहता, वो अखियां नहीं लैनियां चाहदियां, चाहता जिहड़ियां प्रभु तो मिलदियां हन, जिहदे नाल फिर प्रेम पैना है परमेश्वर दे नाल। सह देखे बिन प्रीत न उपजे, अंधा क्या करे। नानक जिन अखीं लीतियां सही सच्चा दे। वही दिंदा जिहड़ा अखां लैंदे ने उस प्रभु तो, पर वो लैना नहीं चाहते। अखां दे विच नेत्रां दे विच ज्ञान दा सुरमा पाउणा नहीं चाहते। किवें पार हो जाणगे। चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित। कहंदे इत्थे दियां सियाणपां, इत्थे दियां चंगियाइयां किसे काम नहीं आउंदियां। अपनी सियाणप, अपनी संसारक संगियाई, ये कुछ भी काम नहीं आउंदा। नानक नाम संभाल तू बद्दा छुटा जित। इस करके समझाते हैं कि तू नाम नूं संभाल, फिर ही इन्हां बंधना तो तू छुट सकता है। पर वो ज्ञान लेना नहीं चाहता जीव, तो फिर उसके उत्ते ये पार ही पार है। वो डुबेगा ही, उसनूं आपां संत नहीं कह सकते। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੱਜਣ नहीं है ਜਿਹੜਾ सज्जन ने ਉਹਨੂੰ अगे ਛਡਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਿਰਫ ਨਾਮ, उस नाम नूं आपां त्याग के ही, नाम नूं ही सज्जन, नाम ही मित्र, गुर दा ज्ञान मित्र, प्रभु नूं मित्र बना लेना है। वो जिथे फिर लेखा मंगेगा आप खड़ा होएगा। उस दे वास्ते मित्र बनाउण वास्ते की करना पैंदा है? वो ज्ञान लेना पैंदा है कि किहो जिहा ज्ञान है, किवें वो लेखा लिखना हुंदा है, जिहदे नाल साडा इस संसारी लेखा फड़ जाता है। मेरे समझाउंदे ने, ओ जाल कस मस कर मत कागद कर सार, पौ कर्म कर चित लखारी, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सलाह लिख, लिख अंत न पारावार। बाबा ए लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਕਿਸ ਤੇ ਮੰਗੇਗਾ? आप बख्शिश कर देंदा जिसनू, जाको अपनी करे बख्शीश ते ताका लेखा न गणै जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। उस प्रभु दे दर्शन हो जाते हैं, फिर लेखा नहीं होएगा। आओ किमें करना है? जेकर कोई नवा जीव उसने समझण दी कोशिश करनी है, क्योंकि ज़्यादातर आप हर रोज़ कमाने वाले हाँ, फिर भी आप रोज़ समझाते हाँ जीवां नूं कोई नवा होवे जिन्हों नहीं ज्ञान, ताकि अपने जीवन का लाह खड़ सके। वो आप जोत समझाते हाँ कि किवें ये ज्ञान हुंदा है, किवें सानू जे जीव अपना जिहड़ा इस कालड़ी मस अपने मुख ते देख लेगा, अपने रूप नूं देख लेगा जिहड़ा मैल चढ़ी है, स्थूल है, फिर इस नूं नहाउण दा भी चौ पैदा होएगा। फिर इस नूं डर होएगा कि जे इदां चले गए सजा मिलेगी। फिर वो अपने मन का इशनान भी करेगा, मुख उज्जल भी होएगा, सारा कुछ करेगा, पर जे जानेगा। हुण आपां किवें अपने आप नूं देखण दा ज्ञान है जिहड़ा अपनी दृष्टि नूं इस पॉइंट ते, दोनों नेत्रां नूं इस पॉइंट ते आपां फोकस करके अपने आप नूं देखना हुंदा है। देखना की है कि जे असीं दो दृष्टि च हाँ, फिर सानू अपना नक नज़र आएगा। जदों एक दृष्ट हो जाएंगे सानू अपना नक नहीं दिसेगा। एक दृष्टि दे विच नक नज़र नहीं आएगा, दो दृष्टि दे विच सानू अपना नक नज़र आएगा। उत्थे सानू अपना अस्थूल रूप, क्योंकि ये साडी मेन पहचान है, आई मार्ग है, ये ज्ञान इंद्रियां नेत्रां दा। इत्थे ही आपां अपने आप नूं मथना हुंदा है गुर दे ज्ञान द्वारा, जिथों अमृत प्रगट होना है। आपां इस पॉइंट ते ध्यान ला के ये देखना हुंदा सब तो पहला कि नक नज़र आउंदा कि नहीं आउंदा, क्योंकि एक दृष्ट होवांगे नक नहीं दिसेगा, दो दृष्टि च होवांगे नक दिसेगा। जे नक दिसदा है उत्थे असीं ये समझ सकदे साडा मन दो दृष्टि च है, अस्थूल है, साडा एक आपा रूप है। फिर ये देखना हुंदा भी किस पासे है साडा ध्यान, क्योंकि बहुत सारे जीवां दा ध्यान सज्जे हुंदा है, उसनूं सज्जे पासे ही नक दिसदा। कई जीवां दा ध्यान खब्बे हुंदा है ज़्यादा, उन्हूं खब्बे पासे ही नक नज़र आउंदा है। कईयां दा ध्यान विचाले हुंदा जिन्हूं दोनों पासे तो नक नज़र आउंदा है। ते जदों फिर आपां गुर दा ज्ञान द्वारा ध्याना शुरू करांगे, उस तो बाद की होएगा, सानू नक प्रकाश दिसेगा, प्रकाश रूप हो जाएगा। जब आकार निराकार रूप हो गया तो फिर निराकार का कोई लेखा नहीं मंगता, साडा मुख प्रकाश हो जाएगा, मुख उज्जल हो जाएगा, तो फिर सानू आपे दी पहचान होंदी है। फिर वो गुर दा ज्ञान साडे सदा संग होएगा, गुर मेरा संग सदा है ना रहेगा। फिर सानू जिथे भी किते लोड़ पैगी आप हाजिर होएगा। सो आपां करना की है, इस पॉइंट से ध्यान ला के अपने आप को देखना है कि नक दिसदा या नहीं दिसदा। जे दिसदा किस पासों देदा, सज्जे खब्बे या दोनों पासों। इतों फिर मैं आप जी आवाज़ देवांगा कि ध्यान सामने लैके आओ। इतों आप सामने देखांगे, फिर मैं आप जी आवाज़ देवांगा कि ध्यान मस्तक के सामने लै जो। आप पलका उत्ते चुक दांगे,
फिर जदों कवांगा सामने, फिर सामने देखांगे, फिर जदों कवांगा नक ते सम करके, फिर इस पॉइंट ते दृष्टि सम करके देखांगे। फिर देखांगे जे किसी नूं दिसदा है कि दिस नूं हट गया, क्योंकि जदों एक दृष्ट हो गए कौन करेगा? साडे मस्तक ते सारियां दे बसदा है, जिन्हें सानू दो तो एक करना है, कोई बंदा नहीं कर सकता। इस करके आपां उहदी शरण च जाना है। इस रस्ते नूं कित्थे जाना है? उच्चे थां ते। जदों साडी टुੱਟੀ गड्डी कढ़ देगा उत्थे की होएगा? असीं एक जोत हो जाएंगे। फिर नक नहीं नजर आएगा। इस पासे एक हल्की परछाई जी सानूं नजर आ सकती है, खब्बे पासे। फिर आपां अभ्यास करांगे जिहदे नाल फिर साडा मुख उज्जल होएगा। ते जदों मुख उज्जल हो जाएगा ते लेखा भी खत्म हो जाएगा। आपां दरगाह दे विच प्रवान हो जाएंगे। सारे पासे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू होएगा। सो आओ अपनी दृष्टि नूं सम करके अपने आप नूं देखिए कि नक दिसदा है या नहीं दिसदा। जे दिसदा किस पासे तो दिसदा है, सज्जे खब्बे या दोनों पासे। आओ ध्यान लगाइए। सामने लेके आइए, ध्यान सामने देखिए। मस्तक दे सामने ले जो ध्यान, पलक उत्ते जो। फिर सामने लेके आइए, ध्यान सामने देखिए। फिर नक ते सम करके देखिए, दृष्टि नक ते टिका के अपने आप को देखिए। हुण देखना है कि नक जे पहला दिसदा सी किसे नूं, दिसनों हट गया, क्योंकि जदों एक दृष्ट हो गए उसकी निशानी क्या कि सानू अपना नक नहीं दिसेगा। इस पासे एक हल्की परछाई जी दिस सकती, क्योंकि इस दृष्टि ने, इस ध्यान ने इस पासे आना। ध्यान नीचे ले जाइए। हुण नीचे जो भी कपड़ा वगैरह विछया थले जिथे आप बैठे, उस कपड़े तो थोड़ा उत्ते देखना है। आप इत्थे सानू एक प्रकाश अनुभव होना शुरू होएगा, एक हलचल, एक चिलमिल अनुभव होएगी, जिसनों आपां देखी जाना है। जिवें पानी दी लहरां सरोवर च हुंदियां, इत्थे सानू उदां दा ही एक हलचल पानी की तरह अनुभव होनी शुरू हो जाती है। उसनों आपां देखी जाना हुंदा है, ध्याना है।
फिर अपने आप ਨੂੰ दृष्टि सम करके देखिए। दृष्टि सम करके फिर अपने आप ਨੂੰ देखिए। नक ते ध्यान लगा के अपनी जोत ਨੂੰ देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान। फिर अपने आप को देखिए दृष्टि सम करके। फिर नीचे ले जाइए ध्यान। फिर सम करके अपने आप को देखिए दृष्टि सम करके।
फिर नीचे ले जाइए ध्यान। फिर सम करके अपने आप को देखिए, दृष्टि सम करके फिर अपने आप को देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, ये तरीका है, जुगती है जिस द्वारा साडा मुख उजल होना है, ते फिर साडे अंदर उस प्रभु की सेवा का चौ पैदा होना है, चाकरी होनी है, चाकर बनना है, नाम नू संभालना है, ते फिर साडा मुख उजल होना है। फिर वो ज्ञान साडे कोल बस जाना साडे मन दे विच, जिहड़ा ज्ञान साडे नाल ही रहना है, साडा सदा साडा संगी हो जाना है। जिथे सानू लोड़ पेगी उत्थे फिर साडा आप निस्तारा करता है, नाम प्रगट हो जाता है। जिथे भी कोई सानू तकलीफ आएगी आप साडी सहायता करता है। जय पांडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंत रखो नश जानू, हर का नाम तै नाल पछानू। जहाँ महा प्यान तप्त बहु काम, तै हर के नाम की तो ऊपर शाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकरख है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। आप साडी सहायता करेगा। सौ इन्निक विचार करते हैं, बहुत सारिया भुलां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण जोग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।